Dear students, I welcome you all to my channel. So today I have a new video for you on areas of parallelograms and triangles. So first of all, I want to give you some brief introduction regarding this chapter. The term which will be used during the solutions of the questions of this exercise. So first of all is the figures on the same side, same base and between same parallel lines. Okay, two figures are said to be on the same base and between same parallel line if they have a common base or a side, common side, and the vertices or vertex opposite the common base. Are on a line parallel to the common base. Parallel to the common base or a same base. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे कि एक ये लाइन ड्रॉ कर रहा, सपोज दिस इज़ अ बेस. अब इस बेस के ऊपर हम दो ट्राइंगल बना सकते हैं ऐसे, ये दो ट्राइंगल्स होगी. इसी तरीके से ये कॉमन एक बेस है, इसके ऊपर हम दो क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं. तो क्वाड्रिलेटरल में भी द पैरेललोग्राम में भी ट्रेपेजियम, अब इस तरीके से दो क्वाड्रिलेटरल होगी, कॉमन बेस, दो ट्राइंगल ऑन द हैविंग द कॉमन बेस. अब ये द फिगर्स आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस और द कॉमन बेस if they have the same side or the common one side common. अब उसके बाद they are said to be between the parallel line if the vertices, जैसे अब ये एक ट्राइंगल है, इसका ये वर्टेक्स हुआ अपोजिट द कॉमन बेस और ये वर्टेक्स, तो इसमें जो लाइन जो है, ये जो लाइन है ड्रा कर रहे हैं हम, the vertices lie on the line, the vertices opposite the common base, the same side, lie on the line parallel to the same base या common base. अब इसी तरीके से ये जैसे दो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है, so they are on the same base and their vertices are on the line, the vertices opposite the common base, they are on the line. This is parallel to the common base. So इस तरीके की जो फिगर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं द फिगर्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस. अब है एरियाज के रिगार्डिंग एरिया. अब एरिया के बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ फिगर. So area
of a figure is a number associated with a part of the plane enclosed by that figure. अब जैसे ये बोर्ड है, दैट्स ए पार्ट ऑफ द प्लेन. अब जैसे ये हमारी ये वॉल इज अ वर्टिकल प्लेन, रूफ एंड द फ्लोर दे आर द हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, द रूफ फॉर रूम आर द वर्टिकल प्लेन. सो इसी तरीके से बोर्ड एक प्लेन है. इसके ऊपर जब भी हम कोई फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसे सर्कल ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ की, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, the area of these figures will be the part of this. इस बोर्ड का जो ये जो बोर्ड एक प्लेन है, तो इसका जो एक पार्ट है जो इन्होंने इनक्लोज किया. सो दिस इज द पार्ट ऑफ दिस बोर्ड विच इज इनक्लोज बाय दिस सर्कल. सो दिस इज पार्ट ऑफ दिस प्लेन विच इज इनक्लोज बाय दिस ट्रायंगल. This is a part of the plane which is enclosed by these rectangles. So area of these figures is a number associated with the part of the plane enclosed by these figures. So any of the figures, the area of that figure will be the part of that plane enclosed by that figure. Now I am taking some more एग्जाम्पल हेयर्स. अब जैसे ये अब यहाँ पर मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ. जैसे एक ड्रॉ किया मैंने एक पैरेललोग्राम. तो दिस इज़ अ बेस फॉर दिस पैरेललोग्राम. अब इसके ऊपर अब हम एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते हैं. सो दीज आर द टू पैरेललोग्राम्स विच आर ऑन द सेम बेस, बट दीज आर not in between the two parallel lines. It's the same two parallel lines because these are having the vertices are just lying below the plane of the vertices of this parallelogram. अब ये दो फिगर्स हैं, ये दो triangles. So these are the two triangles lying on the same base and will lie in the, if the vertices are on the line parallel to the base, so then the area of this triangle will be equal. So the area of the congruent figure, first of all, regarding the congruent figures, the area of the congruent figures are equal in area. The area of any two congruent figures, maybe quadrilateral, maybe triangles, maybe circles, so they have the same area. The area of the parallelograms which are on the same base, the area of the two parallelogram which are on the same base and between the same parallel lines, they are equal in area. The area of the two parallelogram are on the same base and lying between the same parallel lines, they are equal in area. तो एरिया इनका बराबर होगा. दो पैरेललोग्राम अगर वो एक ही बेस पर बनी है, सेम पैरेलल के बीच में बनी है, तो उनका एरिया बराबर होगा. इसलिए एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स विच आर लाइंग ऑन द सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन द टू सेम पैरेलल लाइंस, दे आर ऑफ द सेम एल्टीट्यूड्स, सो द एरिया विल बी इक्वल. अब रिगार्डिंग द एरिया, फार्मूला फॉर द एरिया. So area of the parallelogram is given by the formula. Area of a parallelogram is equal to the product of its base and corresponding altitude. कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. जैसे मान लो एक पैरेललोग्राम है,
ये पैरेललोग्राम है। अब इसका मैं नाम लिख रहा ABCD इज ए पैरेललोग्राम। So ABCD is a parallelogram. The area of this parallelogram will be equal to the base AB multiplied by the altitude of this side, AB sides. So AB side की altitude होगी ये, the corresponding altitudes. So suppose करो this is a point L. So area of this parallelogram ABCD will be equal to so product of this base and the corresponding altitude, that is DL. And if we are taking this base AD, we cannot multiply with DL because DL not the altitude of this base. The base, then the altitude will be from the opposite side. तो ये इसका altitude बनेगा। तो suppose this is M. So then the area of this parallelogram ABCD will be equal to so AD multiplied by BM. So BM is the corresponding altitude of this base AD. So we have to keep in mind so this part of this quadrilateral or the parallelogram we are taking as a base, and the corresponding altitude should be used there. Similarly, area of a triangle is equal to the half of the product of base and corresponding altitude. Corresponding altitude. जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ABC is a triangle. So you have to find the area of this triangle ABCs. So the base is BC. To multiply with the perpendicular drawn from the opposite, the vertex opposite the base. So that is the AD. Suppose AD is the perpendiculars. So that is the altitudes. So base multiply altitude and half of this. So that will be the area of triangle ABC. So area of the triangle, area of any triangle is equal to half of the base and the corresponding altitude. अब जैसे कोई पैरेललोग्राम है, अब पैरेललोग्राम को अगर पैरेललोग्राम में दो उसके डायगोनल्स होते हैं, सो दिस सपोज ABCD पैरेललोग्राम। अब इस को अगर हम दो डायगोनल्स में से एक डायगोनल को हम ज्वाइन कर देते हैं, suppose we have joined the diagonal BD. So this parallelogram has been divided into two triangles, triangle 1 and triangle 2. A diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal area. Means the area of the triangle ABD will be equal to the area of the triangle BCD. अगर इसी तरीके से इसके बजाय हम ये डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं AC, तो इस तरीके से दो ट्राइंगल बन गई। अब दोबारा से ABC, द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC will be equal to the area of the triangle ACD. So it means a diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal area. अगर इसी तरीके से अगर हम दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं तो इस तरह से यहाँ पर चार ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3 एंड ट्राइंगल 4. So if the two diagonals of a parallelogram divides it into 4 triangle of equal area. अब इस तरीके से suppose this is a point of intersection of diagonal AC and BD, the point O. तो इस तरीके से जो दो ट्राइंगल, चार ट्राइंगल बनी, ट्राइंगल AOB
triangle BOC, triangle ACOD, and triangle AOD. These four triangles are of equal in area. So diagonals of the parallelogram divides into four triangle of equal area. अब इसका अगर कन्वर्स अगर हो, कन्वर्स क्या होगा कि किसी क्वाड्रिलेटरल में उसके दो डायगोनल, so quadrilateral again we are taking name as the ABCD is a quadrilateral, and the diagonal of quadrilateral ABCD, AC and BD intersect at point O such a way that the four triangles made by the joining of this triangle diagonals, these are of equal in area, then the quadrilateral will be a parallelogram. जैसे अभी हमने पहले कहा था कि एक पैरेललोग्राम के जब दो डायगोनल्स को हम इंटरसेक्ट जॉइन करते हैं तो इंटरसेक्ट करने पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे इस तरह चार ट्रायंगल बनती है, तो चारों ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है. अब इसका उल्टा बोलें कि एक क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल ने इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट ओ पर और चार ट्रायंगल जो बनी है उनका एरिया अगर बराबर है तो वो जो क्वाड्रिलेटरल थी दैट विल बी अ पैरेललोग्राम. अब रोम्बस के बारे में the rhombus, the area of a rhombus is equal to half of the product of length of the diagonals, so diagonal D1 into D2. So area of a rhombus is equal to half of the product of the length of the diagonals. So जैसे ये एक rhombus है तो इसके जो डायगोनल्स होंगे, सो डायगोनल्स D1 एंड डायगोनल D2, अब इनका जो प्रोडक्ट होगा उसका हाफ अगर किया जाए दैट विल बी द एरिया ऑफ द रोम्बस. तो एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द टू डायगोनल्स. अब पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के बीच में क्या रिलेशन है एरिया के बारे में, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. So, जैसे एक ये पैरेललोग्राम है, अब इसी का बेस हम लेते हैं, ए बी इज अ बेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम. अब इसी बेस पर अब हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं. So this is, suppose this is an E, ABE is a triangle. So here are a parallelogram ABCD is a parallelogram on the base AB, and similarly AB is a triangle which is on the same base AB. So and they are the vertices lying between on the line joining the on a line which is parallel to the same base, a common base. The vertices lying between the parallel lines, two same parallel lines, then the area of this triangle will be half of the area of the parallelogram. It means if a parallelogram and triangles lying on the same base, then the area of the triangle will be half of the area of the parallelogram. दूसरा कि जब दो पैरेललोग्राम किसी एक सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करती हैं, सो द एरिया विल बी ऑफ दोज पैरेललोग्राम विल बी इक्वल. सिमिलरली द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स lying on the same base and between that same parallel lines, they are equal in area. So these are some points which will be used during the solving of the questions. तो इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन दे दी है कि जो जो कंसेप्ट्स इसमें चैप्टर में हमें यूज़ करने पड़ेंगे तो वो हमें क्लियर होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर इज द क्वेश्चन. Which of the following figures lie on the same base and between the same parallel lines? In such a case, write the common base and the two parallel lines.
अब देखिए ये 6 फिगर्स बनाए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अब इन फिगर्स में से देखिए सबसे पहला फिगर को देते हैं हम। इस पहले फिगर में अब देखिए पहले फिगर में ट्राइंगल पी सी डी, ट्राइंगल होगी पी सी डी, और एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी। ये एक ट्रेपीजियम होगी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम जिसमें ये पैरेलल लाइन होगी। तो इसलिए ट्राइंगल जो है ये भी जो है इन दो पैरेलल लाइन्स के बीच में है और बेस जो है दोनों के लिए कॉमन है। सो इन फिगर, फर्स्ट फिगर, in figure 1, so triangle PCD and trapezium ABCD are on the same base. Same base, बेस कौन सा है? बेस DC, इस बेस पर हैं दोनों, and the same parallel lines and are between the same parallel lines और पैरेलल लाइन्स हैं ए बी एंड डी सी। तो ए बी और डी सी पैरेलल लाइन होगी और बेस जो है कॉमन इसके लिए हो गया डी सी। तो ये था पहले फिगर्स के बारे में। अब दूसरे फिगर्स को देखिए। अब दूसरे फिगर्स में एक तो होगी पी क्यू आर एस इज ए पैलोग्राम, whereas MNRS is a trapezium. So these two figures are on the same base SR, but these are not in between the same parallel lines, क्योंकि ये इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है। तो पैरेलल बेस जरूर इन दोनों में एक कॉमन है, लेकिन these are not on between the two same parallel lines. तो इसलिए सेकंड फिगर जो है के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होता। थर्ड फिगर में अब देखिए ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल टी क्यू आर इन फिगर 3। सो ट्राइंगल टी क्यू आर and parallelogram PQRS are on the same base. बेस कौन सा है? QR. तो सेम बेस QR and between same parallel line सेम पैरेलल लाइंस हैं क्यू आर एंड पी एस। तो ये और ये दो पैरेलल लाइंस होगी और बेस इसके लिए हो गया कॉमन बेस क्यू आर। तो ये तो इसमें से ये भी जो है फिगर जो है सेम बेस और पैरेलल लाइंस के लिए सेटिस्फाई है। फिगर 4 में देखिए ये ट्राइंगल है पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल एंड ए बी सी डी इज ए पैलोग्राम। सो दीज टू फिगर्स आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस बी सी एंड ए डी, बट द बेस फॉर दिस ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ बेस इज पी क्यू एंड फॉर दिस पैलोग्राम द बेस इज बी सी। सो दिस two figures are not on the same base, although they are present in between the same parallel line, but they are not on the same base. So next figure number 5. So in figure number 5, so there is A B C D is a parallelogram, A B C D.
In figure 5, A, B, C, D parallelogram. So parallelogram A, B, C, D and parallelogram P, Q, D, A. P, Q, D, A. They are on the same base. Are on the same base. अब देखो ये पैरेललोग्राम जा रही है इधर और ये एक इधर को जा रही पैरेललोग्राम, इसके लिए सेम बेस हो गया AD, सेम बेस AD, ये बेस हो गया, ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम, इन दोनों के लिए सेम बेस हो गया एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइंस होगी AD एंड BQ। तो इसमें इनमें से ये फिगर भी जो है इसको सेटिस्फाई कर रही है। सो नेक्स्ट द लास्ट फिगर 6। अब 6 फिगर में देखिए, अब ये एक पैरेललोग्राम होगी, ये वाली पैरेललोग्राम है PADS। सेकंड फिगर again a parallelogram ABCD is a parallelogram. Third figure BQRC, another parallelograms. There are 3 parallelograms which are between the same parallel line PQ and SR. तो PQ पैरेलल, एक पैरेलल लाइन होगी और ये पैरेलल, लेकिन ये तीनों पैरेललोग्राम जो है दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल बट दीज आर नॉट ऑन द सेम बेस। अब इसके लिए बेस हो गया SD, इसके लिए बेस हुआ DC, इसके लिए बेस हुआ CR। तो इस तरीके से 6 फिगर्स में से 3 फिगर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ दे आर ऑन द सेम बेस एंड द बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस बट एंड अदर 3 आर नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, in the figure ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. A is a perpendicular DC. AE is a perpendicular on DC and CF perpendicular AD. CF is a perpendicular on AD. The length of AB is equal to 16 centimeter. Length of A is 8 centimeter, length of CF is 10 centimeter, find AD. AD की लेंथ हमें निकालनी है। So in parallelogram ABCD, so AB parallel DC and AB is equal to DC. Opposite side of the parallelograms are equal as well as parallel. So therefore AB अगर 16 सेंटीमीटर है तो DC भी जो है वो 16 सेंटीमीटर होगी। तो लेंथ ऑफ द DC विल बी 16 सेंटीमीटर। अब इस तरीके से ये बन गया बेस और ये बन गई इसकी एल्टीट्यूड। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, parallelogram ABCD will be equal to base multiply altitude. So base is DC and altitude is AE. 16 centimeter multiplied by 8 centimeters, that is 128 centimeter square. अब इधर से हम ये बेस लिया तो ये इसकी एल्टीट्यूड होगी। अब हम बेस लेंगे AD। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ABCD again equal to AD multiply base CF। अब इसका एरिया अभी हमने निकाला 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। AD की लेंथ हमें नहीं पता, AD की जगह AD लिखा, और CF है 10 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ AD विल बी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर, so 12.8 centimeters, so that will be the length of the AD। so ये हुआ इसका आंसर कि क्योंकि चाहे हम जो भी साइड लेंगे, जिस साइड को हम बेस बनाते हैं तो वही हमें कॉरस्पॉन्डिंग उसकी एल्टीट्यूड लेनी होगी। अगर ये बेस लिया तो ये एल्टीट्यूड हुआ, तो ये बेस हुआ तो इसका एल्टीट्यूड ही होगा। तो लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी रिमेन द सेम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question is, if E, F, G, H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD, E, F, G, H are the midpoint of side AB, BC, CD and AD. Show that area of EFGH, EFGH ये जो क्वाड्रिलेटरल बनी है, अभी हमें प्रूव करनी होगी क्या इसकी ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, किस किस शेप की है। सो एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। अब उसमें हमें क्या करना कि ये तो हमें मिड पॉइंट दे रखे थे, तो इस तरीके से हमने इनको पहले ही ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि F और H और F को भी और AC को, इन डायगोनल्स को मिला देना। सॉल्यूशन, सो गिवन में हो गए ABCD द पैरेललोग्राम एंड EFGH आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD। वो मैंने आपको पहले बता दिया। और हमें ये प्रूव करना है कि इस का जो एरिया है इस क्वाड्रिलेटरल EFGH का, दैट इज़ हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ABCD। कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमने AC और FH को मिला देना और इन मिड पॉइंट्स से को भी मिला देना, ताकि ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बन जाती है। सो सिंस ये मिड पॉइंट्स है E एंड F, E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ, हम ट्राइंगल ले रहे हैं ये वाली ट्राइंगल ABC। सो इन ट्राइंगल ABC E and F are the midpoint of AB and BC respectively. Therefore EF parallel AC and EF is equal to half of AC। ये मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट थ्योरम जो थी ट्राइंगल की, वो उसके बेस पे। इसी तरीके से इन ट्राइंगल, इसको हम पॉइंट 1 मार्क करते हैं। सो इन ट्राइंगल ADC, सो F G और H, G and H are midpoint of DC and AD respectively. Therefore GH will be parallel to AC and GH will be half of AC। Number 2, so from 1 and 2, अब ये क्या होगा कि EF जो है बराबर हो जाएगा GH एंड
EF पैरेलल GH, क्योंकि जब ये पार्ट इसके पैरेलल है, ये पार्ट इसके पैरेलल है, यानी जब EF AC के पैरेलल है और GH पैरेलल AC के हैं, दोनों एक ही लाइन के पैरेलल हैं, इसका मतलब वो आपस में भी पैरेलल होंगे। और साथ में ये दोनों AC के बराबर भी है, हाफ ऑफ AC के बराबर है, और ये भी हाफ ऑफ AC के बराबर है, इसलिए दोनों आपस में लेंथ में भी बराबर होंगे। तो इस तरह क्या हुआ कि इस क्वाड्रिलेटरल में कि इन क्वाड्रिलेटरल इन EFGH, quadrilateral EFGH, since EF is equal to GH and EF parallel GH, therefore EFGH is a parallelogram, एक पैरेललोग्राम है। अब हमें क्या करना है कि ये इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है हमें प्रूव करना है कि इसका वो ABCD के हाफ है। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो, और ये भी क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, BC जो है BC और AD, जैसे पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम, तो ये जो साइड है आपस में पैरेलल है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी है, इसका मतलब हाफ ऑफ, या लिखेंगे सिंस ABCD is a parallelogram, therefore BC is equal to AD and BC parallel AD. So therefore half of BC will be equal to half of AD. अब इसका हाफ क्या होगा, BC भी हाफ ही है, so therefore FCF will be equal to DH, also CF parallel DH, यानी ये वाला जो पार्ट है इसके इस पार्ट के बराबर हो गया और ये वाला पार्ट इसके पैरेलल भी हो गया, क्योंकि जब ये पूरी साइड जो है इसके पैरेलल है, इसके बराबर है, तो इसका हाफ जो है इसके बराबर भी होगा और पैरेलल भी होगा। इसका मतलब ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। सो therefore HFCD, therefore HFCD is a पैरेललोग्राम। अब हम इस पैरेललोग्राम की बात करें तो अब इस पैरेललोग्राम में क्या है कि अब हमने फिगर देखना कि ये एक पैरेललोग्राम होगी और ये एक ट्राइंगल होगी, सो दे आर ऑन द सेम बेस। सो सिंस ट्राइंगल HFG and parallelogram HFCD are on the same base। बेस कौन सा है, HF, and between same parallel lines, therefore पैरेलल लाइन कौन सी है, DC और HF, DC and HF, therefore so area of triangle HFG will be equal to half of area of parallelogram HFCD। इसको हम मार्क करते हैं नंबर 3।
इसी तरीके से सेम वे में सिमिलरली, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये जो नीचे वाली ट्राइंगल है एच ई एफ is equal to half of area of parallelogram ABFH. इसको मार्क किया 4। अब इनको हम ऐड करेंगे, सो एडिंग 3 and 4, so area of triangle HFG plus area of triangle HEF बराबर, so area of half of area of parallelogram HFCD plus half of area of parallelogram ABFH। अब इन दोनों को ऐड करके तो बन जाएगी पूरी पैरेललोग्राम, सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, और इन दोनों ट्राइंगल को मिला के बन जाएगी पूरी पैरेललोग्राम। सो बन जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HEFG। यही हमें इसमें प्रूव करना था कि इसका जो एरिया है वो इसके हाफ ऑफ एरिया के बराबर है। सो यही प्रूव करना था, सो हैंस प्रूव्ड। So dear students, I have given you solutions for some of the questions here, and in the beginning I have given the introduction, brief introduction of these chapters. So I request you to share and like the video and subscribe the channels. Thank you. Have a nice day.